just 5 more minutes and we'll start. Hi and welcome everyone. I hope I am audible. Yes, you are. It's perfect now. Yes, Yes. you are. So, welcome everyone. We're glad to have you all with us today. A little bit about me. I am Amal Nadeem Kazi, a software engineering undergrad at Fatima Jinnah Women University. I also lead the Google Developer Student Club and Hack Club at my university, and I am also a global ambassador at Women Tech Network. GDSCs are community groups for students that provide peer to peer learning and are dedicated to empower students. For this event, together GDSC Fatima Jinnah Women University, GDSC UED Texila, GDSC NAML, and GDSC New Tech have collaborated. Samia is the lead for UED Texila, Usman for NAML, and Manahil for New Tech. And for Fatima Jinnah, it's me. These are our social links. I'll share them all in the chat box so you guys can easily connect with us. And for today's session, our topic is deep learning with TensorFlow. And for that, we have Usman Khan as the speaker. Usman is the GDSC lead at NUML. He is also a Gold Microsoft Learn Student Ambassador and a regional lead EMEA region at Microsoft Learn. He is a mastermind when it comes to machine learning, Python, and big data. So, without further ado, I'd hand over the session to Usman so he can continue. Thank you, Amal. Let me just share my screen. Okay, so is the screen visible to you, and am I audible? Yes, it's perfect. Everything's perfect. Great. Okay. Welcome everyone to the session of TensorFlow, and we are going to learn deep learning with TensorFlow. So, अमल ने already मेरा introduction दे दी है. So, I'll just go over some like formal things. Who am I and why am I here? And मैं यहाँ पे क्यों आप लोगों को session देने के लिए कर रहा हूँ. So, I'm the GDSC lead for NUMBL. I'm the regional lead EMEA for Microsoft Learn Student Ambassadors. और उसके अलावा I'm also a technical lead for MLSA Islamabad, and professionally speaking I'm a big data engineer at Blue Tech Consulting. और इसके अलावा I have 3+ years of experience in machine learning, NLP, and Python. I've spoken for Google, Microsoft, Facebook, and a bunch of other companies. So that's why I think that I'm a suitable person to give you a hands-on session on TensorFlow and to guide you as well कि आप आगे अगर अपना career लेके जाना चाहते हो deep learning में, so how you can do that as well. So without any further ado, let's get started. तो पहला आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ करने क्या वाले हैं. हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, हम कैसे प्रोसीड करेंगे विद दिस सेशन. तो वी आर हियर टू डू वन थिंग, प्रोबेबली मशीन लर्निंग, दैट्स ऑब्वियस. तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि मशीन लर्निंग है क्या चीज़. अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करो या कहीं भी आपने अपनी बुक्स में पढ़ा हो तो मशीन लर्निंग की एक काफ़ी लेंथी डेफिनेशन है. I've put it into much simpler words
कि machine learning is the process of building models that can understand and predict patterns in text, numeric, or visual data. Like if you have any text data, numerical data, visual data, उसमें से आप patterns detect करते हो और उन patterns को फिर आप याद करके new data को उन patterns के against map करते हो और फिर आप predictions करते हो. That's basically machine learning. And machine learning कितने types की होती है? We have three major types of machine learning. Although we have different types as well, लेकिन ये three major types हैं जो कि market में use होती हैं and that are very crucial. The very first thing is supervised learning. अब supervised learning में क्या होता है? Supervised learning में ये होता है कि आपके पास जो भी data set given होता है या जो भी problem given होती है उसका कोई ना कोई साथ label भी given होता है. इसकी एग्जाम्पल आप लोग इस तरह ले सकते हो कि let's suppose you have an images of cats and images of dogs. Cats के आगे लिखा हुआ है कि ये cats की images हैं या वो किसी ऐसे फोल्डर में जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये cats की images हैं और एक dog की images हैं वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ये dog की images हैं. So that comes under supervised learning. And unsupervised learning में ये होता है कि you don't have such data. आपको बस एक फोल्डर दे दिया जाता है जिसमें thousands of either files या डेटा या कोई भी फीचर्स होंगे. अब आपके मॉडल ने उसमें से पैटर्न्स डिटेक्ट करने ऑटोमेटिकली, आपने उसे कुछ नहीं दिया हुआ. So that comes under unsupervised learning. And then we have reinforcement learning. This is, you can say, the actual AI जिसके बारे में काफ़ी लोग enthusiast होते हैं. तो इसमें ये होता है कि जो भी आपका मॉडल है वो आउटकम बेस्ड अप्रोचेस यूज करता है. लेट्स सपोज आपका मॉडल जो है वो गाड़ी चलाना सीख रहा है तो हाउ विल इट बिकम बेटर? वो बेटर इस तरीके से बनेगा कि पहले वो लाइक ड्राइव करेगा एंड इट विल हिट थिंग्स और फिर आप उसे बताओगे कि इसे हिट नहीं करना, तो वो उन चीज़ों को फिर अवॉइड करेगा एंड इवेंचुअली इट विल गेट बेटर. सो ये इस तरह के मॉडल पे काम करता है. दैट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एंड इनकी भी फिर सब टाइप्स हैं. रिग्रेशन में हम कंटिन्यूस वैल्यूज को डील कर रहे होते हैं. कंटिन्यूस वैल्यूज यू कैन से, जस्ट अ सेकंड, like any numerical value like this. And classification में हमारे पास आ जाती हैं discrete values. Let's suppose we have 1 2 3. These sort of things come under classification. और जो भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें continuous value है तो वो रिग्रेशन के अंदर आती है. एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्लस्टरिंग आ जाती है. क्लस्टरिंग में ये होता है हमारे पास के इस तरह आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं और जस्ट अ सेकंड, एनीहाउ, सो आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं और आप उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं तो ये सॉर्ट क्लस्टर्स बन जाते हैं आपके डेटा पॉइंट्स के. ये क्लस्टरिंग में आता है. एंड देन वी हैव डायमेंशनलिटी रिडक्शन. इसमें क्या होता है जिस टाइम आपका डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको कुछ फीचर्स नैरो डाउन करने होते हैं. लेट्स सपोज आपके पास फीचर्स हैं. अब फीचर्स क्या हैं आगे हम देखेंगे. तो लेट्स सपोज आपके पास 1000 फीचर्स हैं तो अब 1000 फीचर्स लाजमी नहीं है कि वो यूजफुल हों तो हमें उसमें से फालतू फीचर्स रिमूव करने होते हैं. दैट, अब वो हमने रिमूव कैसे करने हैं? अब हम रैंडमली तो नहीं रिमूव कर सकते या एक एक फीचर को हम देख तो नहीं सकते. तो उसके लिए भी फिर एल्गोरिथम्स यूज होते हैं. वन ऑफ देम इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन और देन वी हैव रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एंड रिवॉर्ड पनिशमेंट मॉडल. ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया. And also, if you have any questions during the entire event, you can just drop in the questions in the chat box and I'll answer them. ये एक ओवरऑल एमएल का यू कैन से चार्ट है कि एमएल की क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी इसमें आप काम परफॉर्म कर सकते हो. यू कैन सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि एमएल के अंदर आप कर सकते हो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल और या आपने रिकॉर्डिंग में बाद में से देखना हो तो यू कैन सी दैट एज वेल. ओके, सो अब आते हैं टू द एलिफेंट इन द रूम जो कि डीप लर्निंग है.
अभी हमने ML की बात की थी, and now we're hopping into deep learning. Deep learning and machine learning, they are, you can say, interrelated, but they are not interrelated as well. क्योंकि काम तो वो एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फंडामेंटली दे आर नॉट डूइंग द सेम थिंग. फंडामेंटली वो डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अब इसकी अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन में हम जाएं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ एआई जो कि ब्रेन से इंस्पायर्ड हुई है. ब्रेन में जिस तरह हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं, तो डीप लर्निंग भी ऐसे ही वर्क कर रही है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये बनी थी. और इसमें इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है इसको हम आगे देखते हैं. बट बिफोर दैट एक कंपैरिजन है कि डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में बेसिकली फ़र्क क्या है. डीप लर्निंग में आपको जो डेटा चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. आपका डेटा इट शुड बी ह्यूज, क्योंकि वो छोटे डेटा पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता है यूजली डीप लर्निंग. एंड मशीन लर्निंग जो है वो रूल बेस्ड अप्रोचेस हैं जिस पे यू कैन से रिसर्चर्स हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 30 to 30 years. तो इट हैज़ वेरी नरिश्ड विद द पासेज ऑफ टाइम. तो वो छोटे से डेटा सेट पे भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है. और डीप लर्निंग के लिए आपको जीपीयू चाहिए ऑब्वियसली, एंड एमएल के लिए आपको जीपीयू नहीं चाहिए एज सच. And then baki, you need to understand the basic functionality of the data. आपको you can say जो data itself है उसकी अच्छी फॉर्म में आपको चाहिए होता है. इसमें usually we require a data engineer to filter out the data ताकि आपके पास एक well nourished data आए, फिर आप वो अपनी न्यूरल नेटवर्क को ट्रांसफर करो. बट एमएल में ऐसा कुछ आपको नहीं चाहिए होता. आपको बस फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो फीचर है ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इसमें डीप लर्निंग में ट्रेनिंग टाइम भी ज़्यादा हमें चाहिए होता है, मशीन लर्निंग में लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए होता हमें. एंड डीप लर्निंग में लाइक देयर आर टाइम्स जब कि आपका मॉडल ट्रेन होते हुए वीक्स भी लगा सकता है. तो एमएल में ऐसा कुछ नहीं होता, सेकंड्स या और एट मैक्स होते हैं. एंड एल्गोरिथम्स जो हैं डीप लर्निंग के वो बहुत थोड़े से हैंडफुल हैं, और एमएल के बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स हैं. और डेटा की इंटरप्रिटेशन जो है एल्गोरिथम को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें डीप लर्निंग के, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, जबकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते. सो नाउ वी हैव अ ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. अब इसको हम देखते हैं कि ये लाई कहाँ पे करता है. बाय दिस ग्राफ यू कैन सी कि डीप लर्निंग कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. एक हमारे पास मेजर डोमेन है एआई की, उसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग आ जाती है, एंड उसके अंदर हमारे पास डीप लर्निंग आ जाती है. एंड देन हमारे पास डेटा साइंस भी आ जाती है जो कि ओवरलैप कर रही है उसके साथ. ओके सो डेटा साइंस हमारे पास आ जाती है जो कि ओवरलैप कर रही है इसके साथ. दिस इज बिकॉज डेटा साइंस इटसेल्फ इज नॉट अ प्राइमरली सीएस डोमेन. ये स्टैटिस्टिक्स की एक्चुअल डोमेन है जिसमें ये सीएस की कुछ फीचर्स यूटिलाइज करती है. दैट्स व्हाई ये इसके साथ ओवरलैपिंग है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं एंड कैसे ये वर्क करते हैं, विल लुक इनटू दैट. तो न्यूरल नेटवर्क जो हैं, एंड बाय द वे आई नो कि इसमें भी आगे ऐसी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं विच विल बी अ लॉट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. Can you guys hear me? Yes, Usman, we can hear you. Yes. Okay. Okay, great. Okay, let me go back to the topic. तो I was saying कि ये आगे जो भी हम अभी करने लगे हैं, it will get a bit, you can say,
difficult, but do keep up with me. ये topic ही ऐसा है कि it's very difficult to understand it, and it's very difficult to digest as well. So just bear with me, but we'll try to make it a bit of fun, or we'll try कि बीच में हम कुछ ना कुछ you can say चीज़ों को break down करके और easy तरीके से बता सकें. Okay, so neural networks. डीप लर्निंग जिस चीज़ पे स्टैंड करती है दैट्स न्यूरल नेटवर्क्स. और ये किस तरह वर्क करते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स. ये जो आपको ब्राउन सर्कल नज़र आ रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. इसको भी अभी हम आगे देखेंगे कि ये क्या है एंड हाउ डज दिस फीचर. तो ये इस से कंसिस्ट होता है, और जिस तरह हमारा ब्रेन वर्क करता है ये इसको सिमुलेट करता है, और ऐसे ही ये पल्सेस वगैरह निकलते हैं. एंड विद पास यू कैन से विद मल्टीपल रिसर्चर्स इसने काफ़ी यू कैन से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो कि ट्रेडिशनल एमएल सॉल्व नहीं कर सकता था. सो विल लुक इनटू दैट कि कैसे वर्क करता है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके अंदर हमारे पास लाइक नोड्स होती हैं, और इसमें हमारे पास इनपुट लेयर होती है. अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, ये हमारे पास एक इनपुट लेयर है और ये आउटपुट लेयर है, और ये न्यूरल नेटवर्क इटसेल्फ है. इसकी कितनी लेयर डिफाइन करनी है, कैसे डिफाइन करनी है, और किससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हम आगे देखेंगे. एंड बेसिकली ये इसका आर्किटेक्चर होता है कि इसमें आपके पास इनपुट लेयर्स होती हैं जिसमें आपका सारा डेटा आ रहा होता है, एंड देन आपका एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क होता है, एंड देन आपकी आउटपुट लेयर्स आ रही होती हैं. और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसकी एक इनपुट लेयर होती है, ये ऑलरेडी बता दी है, और इसमें हिडन लेयर्स होती हैं. कि जो लेयर्स मैंने बताई हैं इसको हिडन लेयर्स भी कहते हैं, और एक आउटपुट लेयर होती है. और जो इसकी ईच नोड होती है और वो हर दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होती है. लाइक ये चीज़ है ना, दिस इज कॉल्ड नोड. एंड एरो से आप देख सकते हो कि ये हर दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है. इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये डेटा जो अपना आउटपुट कर रही है ना, वो हर नोड को आउटपुट कर रही है, ये वाली नोड, और बाकी सारी नोड्स भी ऐसे ही कर रही हैं. तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में. और अब इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो है परसेप्ट्रॉन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसको हम नोड भी कह रहे थे. इसको अभी हम नोड भी कह रहे थे. तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लेट्स सपोज इसको हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया, और इसके अंदर ये दो नोड्स भी रिमूव कर दिए. तो हमारे पास सिंपली इनपुट लेयर है, ये एक हिडन नोड है, और ये आउटपुट लेयर की एक ही नोड है यहाँ पे. तो ये हम दे रहे हैं. तो इनपुट्स में हमारे पास ये x1 x2 x3 ये क्या चीज़ें, ये फीचर्स हैं हमारे पास. ये सारे फीचर्स हैं, और इनके कोई ना कोई वेट्स होंगे, और फिर इसके अंदर कोई ना कोई इनपुट फंक्शन लगा होता है. इस तरह हम फंक्शंस लगाते हैं ना कोडिंग में, तो ये उस तरह का एक फंक्शन होता है, और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस हमारी ट्रू आ जाएं तो कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, अगर वो फॉल्स आ जाएं तो उसका कुछ एक्शन परफॉर्म होता है. तो ये इसका एक मेन फार्मूला है. अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, उसके अंदर एक फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b. ये बेसिकली यही चीज़ है. m जो है हमारे पास ये वेट्स आ गए, और x जो है वो सारी इनपुट्स आ गई हमारे पास, और b जो है वो बायस होता है. यहाँ पे ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोड होती है यूजली, जिसको हम कहते हैं बायस. उस वो किस लिए होता है, क्यों होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और जो भी इसकी आउटपुट होगी वो यहाँ पे आएगी, ये इससे आउटपुट हो रही होगी. और ये जो इसके अंदर ये लाइक प्लस वगैरह हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है,
यू कैन से कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये इसके अंदर आ जाता है और फिर ये आगे पास हो जाता है एक्टिवेशन फंक्शन को। तो ये ओवरऑल परसेप्ट्रॉन का यू कैन से पर्पस है एंड इसकी फंक्शनैलिटी है ये। अब परसेप्ट्रॉन फंक्शन का ऑलरेडी मैंने बताया है ऊपर के एम एक्स प्लस बी होता है। अब इसकी नोटेशंस चेंज की जा सकती हैं। कुछ लोग इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग किससे करते हैं, कुछ लोग किससे, लेकिन दिस इज द सेम थिंग। बस डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। एम एक्स प्लस बी मैंने बोला था, ये एम की जगह यहाँ पे डब्ल्यू है, एक्स की जगह एक्स ही है और बी की जगह हमारे पास डब्ल्यू जीरो है। तो ये जो मैंने बताया था दैट वाज फॉर वन फीचर। एक फीचर है आपके पास और उसके लिए आप कर रहे थे, लेकिन लेट्स सपोज आपके पास एन नंबर ऑफ फीचर्स हैं, तो आपको फिर एन नंबर ऑफ ये डिफाइन करने पड़ेंगे। ये जो सारा है एन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड एन नंबर ऑफ वेट्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे और इसको कहते हैं परसेप्ट्रॉन फंक्शन। इसको कहते हैं हम इसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन फंक्शन। अब इसकी नोटेशन काफ़ी लोगों ने चेंज की होती है, बट टू गेट द कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी ये फॉर्मूला है आई दैट मीन्स कि ये परसेप्ट्रॉन फंक्शन है। और इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ फंक्शन दैट मैप्स इट्स इनपुट एक्स जो कि ये है, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय द लर्न वेट कोफिशिएंट जो कि ये है। लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ, आई नो कि मैथ्स है बट लेट्स मेक इट अ बिट मोर फन। लेट्स सपोज ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, सो सॉरी फॉर द इश्यू। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2x, ये एक सिंपल सी इक्वेशन हम लेते हैं। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आपको 2 इनपुट दिया जाए तो आपकी आउटपुट रियली सॉरी फॉर द डिले। ओके, सो अब एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू 2x और इस इक्वेशन का क्या मतलब है इसको जरा डिबंक करते हैं। लेट्स सपोज आपको इनपुट दी जाती है 2, तो आपकी आउटपुट होगी 4 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। और ये फंक्शन यू कैन से यहाँ पे सेंटर में लाई करता है। ये आपकी इनपुट थी 2 और ये आपकी आउटपुट है 4 और इसके अंदर कुछ हुआ है जो कि आपको नहीं पता क्या हुआ है। तो लेकिन उसने आपके नंबर को कन्वर्ट कर दिया 4 में। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि इसके अंदर ये जो जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके, तो इस तरह का कोई भी आप फॉर्मूला जो डिफाइन करते हैं ना, वो हमारे पास परसेप्ट्रॉन फंक्शन आ जाता है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो भी आपने प्रोसेसिंग करवानी है, जिस तरीके से करवानी है, वो यहाँ पे आ जाती है। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि 2 जो है 0.5 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इक्वेशन लिख लो। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का वो है फॉर्मूला। इससे सिंपल कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास। तो आई होप कि परसेप्ट्रॉन फंक्शन क्लियर होगा। देन सर सेकंड ये चीज़ आ जाती। एक्सक्यूज मी यस, सर, ये वेट जो 0 था इसके साथ कोई इनपुट नहीं था। बेसिकली ये बायस है। मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं है इधर। ये अगर याद हो आप लोगों को, ये इक्वेशन मैंने लिखी है एम एक्स प्लस बी और ये एक्स्ट्रा नोड यहाँ से जाती है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि लेट मी शो यू गाइस दिस। लेट्स सपोज आपके पास एक हाउस है, उसकी प्राइस है
लेट्स से 4 है और आपने अपना मॉडल ट्रेन किया हुआ है, सारा कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप उसे सारे फीचर्स देते हो, जिस तरह किस लोकेशन पे है, उसके कितने कितने मरले का घर है, कितने स्क्वायर यार्ड का है, और किस सिटी में है, आप सारे उसे फीचर्स दे देते हो। तो वो एक प्राइस प्रेडिक्ट करता है, वो प्राइस प्रेडिक्ट करता है आपका मॉडल 4.5, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो 4 थी। अब 4.5 और 4 को कैसे आप लाइक अकोमोडेट करोगे कि जो गैप आया है। और लेट्स सपोज आप एक और हाउस की प्राइस देते हो जिसकी प्राइस थी लेट्स सपोज 6 थी, तो वो आपको आउटपुट में देता है 5.5। मीन्स कि इस केस में उसने कम आपको प्राइस बताई है और इस केस में उसने आपको ज़्यादा प्राइस बताई है। अब आप इसको कैसे अकोमोडेट कर सकते हो? इसको आप ऐसे अकोमोडेट कर सकते हो कि आपने एक बायस डालना होता है, जो कि यू कैन से कि हम जिस तरह उर्दू में कहते हैं कि ऊपर नीचे हो जाएगा। लेट्स सपोज आप 1000 की चीज़ लाते हो, 1000 की चीज़ कोई लेने जाते हो, तो अब आपको नहीं पता वो 1000 की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है 800 की मिल जाए, हो सकता है 1200 की मिल जाए। आप कहते हो कि 1000 रुपये की मैं चीज़ लूंगा या और 200 रुपये ऊपर नीचे मैं कर लूंगा। तो बेसिकली वो जो ऊपर नीचे हम कर रहे हैं वो बेसिकली ये बायस है यहाँ पे। तो उसका वेट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सिंगल स्केलर वैल्यू होती है जो हम साथ देते हैं जस्ट इसलिए कि हमारी ये जो डिफरेंस आ रहा था ना, इसको हम मैनेज कर पाए। आई होप दैट क्लियर्स अप द क्वेश्चन। Yeah, understood. Thank you. ओके, देन वी हैव एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि जो सारी इक्वेशंस थी एंड एवरीथिंग, लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, इस इक्वेशन के आगे इसकी आउटपुट नहीं लिखी हुई। ये इक्वलिटी का साइन नहीं है जो कि मैंने यहाँ पे डाला था, ये वाला। वो इसलिए नहीं है कि आपने इसके आगे कोई ना कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है। मीन्स के ट्रू या फॉल्स या कोई भी जो आउटपुट आपने देनी है वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो वो जो आप कंडीशन पुट इन करते हो उसके लिए एक फंक्शन आप यूज करते हो, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास एक इनपुट है 2 एंड व्हाट आई वांट, लेट्स सपोज हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक है 2 और एक है 3, और मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ की कि अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1 डिस्प्ले करवा दो, और अगर ग्रेटर देन 2 नहीं है, लाइक लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो 0 डिस्प्ले करवा दो। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो अपना, जो भी आपका बिजनेस रूल है या जो भी आप मॉडलिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ है। इसमें कोई भी ऐसे नहीं आप कह सकते कि आपने ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है। ये टोटली आप पे है, आप कैसे लेके चलना चाहते हो। आप टेस्टिंग करते हो, उसकी हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो आप उसको लेके चलते हो। तो 3 तरह के हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेजर यही है। स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन ये करता है कि लाइक जो भी वैल्यू है ना उसको 0 से 1 के दरमियान मैप कर देता है, या 0 होगी या 1 होगी, उसके दरमियान आपकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। और ये वाला जो फंक्शन है ये यूजुअली यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन में। और सेकंड फंक्शन है हमारे पास साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है, इस लिमिट को कर देता है -1 से 1 तक। तो इसके दरमियान लाइक कोई भी वैल्यूज वो नहीं होती, क्या कहते हैं, लाइक दिस कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं आती हमारे पास। या 0 होगी, या -1 होगी, या 1 होगी, इसमें 3 वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। तो ये यूजली मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज होता है। एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है सिग्मॉइड फंक्शन, और इसकी कर्व आप लोग देख रहे हो कि ये थोड़ी सी कर्व चेंज है इसकी। ये यूजली हमारे पास यूज होता है जिस टाइम हमने
कॉन्टिन्यूस फीचर्स यूज करने हैं। लेट्स सपोज 0 से 1 के दरमियान आप चाहते हो 5.5 0.55 रिजल्ट आ जाए, तो इन दैट केस यू यूज सिग्मॉइड फंक्शंस। और ये सिग्मॉइड में बेसिकली आप कोई ना कोई यू कैन से ऐसा फंक्शन लिख लेते हो जो कि हमेशा इसके दरमियान वैल्यू रिटर्न करता है। ये तीन हमारे पास मेजर फंक्शंस हैं। एक लीनियर है, लीनियर अगर आप करते हैं तो ये इस तरह डिफाइन होता है, लाइक जो भी आउटपुट आ रही है उसके अगेंस्ट ही, जो भी इनपुट आ रही है उसके अगेंस्ट ही आउटपुट होती है। एंड वी हैव लॉजिस्टिक्स इन केस यू गाइस गॉट लॉस्ट। ये जो हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं वो इस बेसिस पे जो कंडीशन हमने लगाई है ना, इसके रिजल्ट में इक्वेशन तो अब आपने लिख ली है, लेकिन इसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आया होगा। लाइक 4 आया था, हमारे पास 5 आया था, तो उस रिजल्ट को आपने बेसिकली कुछ ना कुछ उसके साथ करना होता है। या तो आइदर उसे 0 करना होता है, 1 करना होता है, या कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी लगानी होती है। तो वो हम इन 3 तरीकों से लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है यूजली ये रेलो है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। 0 से पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं वो 0 कर देता है, एंड उसके बाद वो लीनियरली लेके चलता है। और ये भी यूज़ होता है काफ़ी, सॉफ्ट मैक्स में ये यूजली यूज़ होता है, ये लॉजिस्टिक के लिए और ये लीनियर के लिए। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये जो चीज़ें हम देख रहे थे ना, ये ये एक नोड का हम देख रहे थे, और इसी तरह के सारे नोड्स मिलके ये न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। हर एक नोड पे यही वाला काम हो रहा होता है। बट यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि यूजली जो टेंसरफ्लो है वो इस चीज़ को खुद मैनेज कर लेता है। आपको लाइक लेट्स सपोज आपको कोई टास्क दिया कि आप ये नहीं करोगे कि पेन एंड पेंसिल ले के बैठ के डेरिवेशन स्टार्ट कर दोगे। नो, यू जस्ट नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, बाकी आप प्रोग्रामेटिकली चीज़ें हैंडल कर लेते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है, फिर आप जितने अच्छे कोडर हो, फिर आप अच्छे मॉडल्स नहीं डेवलप कर पाओगे। सो ये जो कोर चीज़ें हैं इसमें आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग आई मीन अंडरस्टैंडिंग। वी डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू राइट like 2 pages of integration and derivation. Okay. सो डीप लर्निंग का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर हमारे पास 5 मेजर स्टेप्स हैं। और 5 मेजर स्टेप्स जो हैं हमारे पास वो हैं कि आपने पहले डेटा कलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपने वेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। वेट्स क्या थे, वो जो डब्ल्यू था हमारे पास। एंड देन आपने मॉडल बनाना होता है, एंड आफ्टर दैट मॉडल इज डन, आप लाइक उन वेट्स को ट्रेन करते हो। लेट्स सपोज कि आपकी प्रिडिक्शन आई थी 4, जबकि एक्चुअल वैल्यू थी 2। अब एक्चुअल वैल्यू आपकी 2 है, लेकिन रिजल्टेंट में आपके पास 4 आया है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट? आप 4 को 2 के करीब कैसे लेकर आते हो? आप उसको ऐसे लेकर आते हो कि जो हमने वेट्स डिफाइन किए थे डब्ल्यू, आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास डिफरेंस आया है 2 का, आप ये वापस लाइक नोट्स के स्टार्ट में भेज देते हो कि ये हमारे पास डिफरेंस आया है, सो एडजस्ट दी नोट्स। तो वो उसके वेट्स जितने भी थे उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेगा। एंड टेंसरफ्लो में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी विल लुक एट इनटू सम ऑफ देम। तो एज आई वाज सेइंग कि आप लोग को कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। एंड चांसेस आर कि इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, तो you have all that requires for deep learning and all of the maths that's required for AI. And अभी हम 3 चीज़ें देखेंगे टेंसरफ्लो के अंदर, टेंसर्स, वेरिएबल्स एंड मॉड्यूल्स। ये प्रोग्रामेटिकली चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ी सी कोडिंग भी हम देखेंगे। टेंसर्स क्या होते हैं? टेंसर्स हमारे पास डेटा होता है। वेरिएबल्स जो हैं वो हमें वेट्स डिफाइन करते हैं। और जो मॉड्यूल्स होते हैं
ये हमें हेल्प करते हैं मॉडल बिल्ड करने में। अब सबसे पहले हम टेंसर्स को देखते हैं। टेंसर होता क्या है? टेंसर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। इफ यू रिमेम्बर हमारे पास 2D और 3D अरेज होती थी। अगर आपने डीएसए पढ़ा हो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो जो 3D अरे होती है बेसिकली वो हमारे पास टेंसर होती है एक तरह से। पहला स्टेप ये होता है हमारे पास, नॉट पहला स्टेप लेकिन जो कोर चीज़ होती है, ये हमारे पास स्केलर है और ये 1D अरे है हमारे पास, क्योंकि इसमें सिर्फ रोज हैं। लाइक एक ही रो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये हमारे पास 2D अरे है और इसको लाइक रोज एंड कॉलम से हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास 3D अरेज आ जाती हैं जो ऊपर बनी हुई है। तो जो भी हमारे पास 3D अरेज होती हैं उन्हें हम यूजली टेंसर्स कहते हैं। टेंसर्स लाइक आप कुछ लोग हैं जो कि टेंसर्स को 1D अरे और 2D अरे को भी कहते हैं, क्योंकि वो टेंसर्स को कंसिडर कर रहे होते हैं जो बैकएंड पे डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है ना टेंसर फ्लो की तरफ से, उसकी वजह से। सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर आप कहीं पे पढ़ते हो कि टेंसर को वो 1D अरे के लिए भी कह रहे हैं और कहीं पे 3D अरे के लिए भी कह रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। काफ़ी जो रिसर्चर्स हैं वो डिफरेंट नोटेशंस यूज करते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसी तरह प्रोग्रेशन में चलता है और फिर इसके रैंक्स होते हैं। रैंक्स अभी हम देख लेते हैं आगे के क्या होता है। टेंसर्स के कुछ फीचर्स हैं जो कि इट्स स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, और इसके अंदर आप जो भी पास करते हो वो यूजुअली यू कैन से डायनेमिकली चेंजेबल नहीं होता। जिस तरह हमारे पास सी और C++ में अरेज होती थी, ये उस तरह की होती हैं, क्योंकि बैकएंड पे ये जो कोड यूज कर रहा होता है ये वही यूज कर रहा होता है। ये उसमें कन्वर्शन करके एंड उसी को आगे लेके चलते हैं। एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल प्रेफर टेंसरफ्लो ओवर नेटिव C++। काफ़ी लोग कहते हैं पाइथन स्लो है, बट पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं लाइक 70 to 80% में दे आर रिटन इन C++। तो मेनली काम C++ में ही हो रहा होता है, सो वो स्पीड का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम अगर कोई इमेज देखें लाइक 1 लिखा हुआ है तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन कंप्यूटर को क्या नज़र आ रहा होता है? ऑल द कंप्यूटर सीज इज अ मैट्रिक्स ऑफ वैल्यूज। अब ये वैल्यूज इसकी ब्लैकनेस की इंटेंसिटी को डिफाइन करती हैं। जितनी हाई वैल्यू होगी वो उतना डार्क होगा, जितनी लो वैल्यू होगी उतना ग्रे होगा। तो कंप्यूटर समझता भी इसी चीज़ को है। तो आपने इस चीज़ पे अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, इमेज को स्प्लिट करना होता है उसके पिक्सेल्स में, और फिर पिक्सेल्स आप फीड करते हो आगे अपने मॉडल को। और इसकी कोडिंग कैसे की जाती है? इसमें यूजली जो कॉन्स्टेंट्स थे, जो 4 लिखा हुआ था पिछली स्लाइड में, वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, TF डॉट कॉन्स्टेंट। ये एक फ्लोट टाइप का कॉन्स्टेंट डिफाइन कर देगा। और जो यूजली हमारे पास बायस होता है वो कांस्टेंट में ही होता है। काफ़ी बार अगर बायस हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स डालना हो तो 1D अरे डाल देते हैं, लेकिन यूजली इस तरह होता है। इसको हम रैंक 0 का भी टेंसर कह सकते हैं। एंड देन रैंक 1 का टेंसर आ जाता है हमारे पास, जिसमें 1D अरे आ जाती है। देन हमारे पास रैंक 2 का आ जाता है, 2D अरे आ जाती है। ये भी देख सकते हो आप लोग। और इसमें एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इसको आपने सिम लाइक नॉर्मल अरेज की तरह नहीं डिफाइन किया, क्योंकि टेंसर फ्लो में डिफाइन करने का आपका अलग मेथड है। आप TF डॉट कॉन्स्टेंट के थ्रू ही ऐड कर सकते हो। आप ये नहीं है कि सिंपली अरे डाल दो और कहो इसको मैं आगे लेके चलूंगा। नो, यू कांट डू दैट। यू हैव टू यूज इट्स ओन बिल्ट इन फीचर्स। और जो डेटा टाइप आपने रखी है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं। और इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज यहाँ पे फ्रूट डिफाइन कर दिए और यहाँ पे आप 1 डिफाइन कर दो। यू कांट डू दैट। यूजली पाइथन में कर सकते हो बट इसमें नहीं कर सकते। और रैंक 3 के जो 3D की हम बात कर रहे थे वो इस तरह से हमारे पास डिफाइन हो जाते हैं।
रैंक 3 का टेंसर। अब इस पे अलग स्लाइड हमने इसलिए बनाई है क्योंकि यूजली यही यूज होते हैं, बाकी टेंसर्स हम इतने ज़्यादा यूज नहीं करते। सो इसमें हमारे पास लेयर्स होती हैं, पहली लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, और जिसको आप एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक इमेज होती है, इमेज के अंदर 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। तो ये जो फ्रंट वाली लेयर होती है ये रेड हो जाती है, ये वाली ब्लू को इंडिकेट करती है, और जो लास्ट वाली होती है वो ब्लू को करती है। तो एक ग्रीन को एक ब्लू को, सॉरी। सो इसको फिर आप क्या करते हो, इसको उसके अकॉर्डिंगली ही आप मैनेज करते हो। तो टेंसर्स यहाँ पे यूज होते हैं। टेंसर्स के फीचर्स क्या हैं, इसमें आप शेप देख सकते हो, रैंक देख सकते हो, एक्सेस और डायमेंशन देख सकते हो, और साइज देख सकते हो। ये जो चीज़ है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेट्स सपोज आप कोई मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हो, लेकिन आपको यू कैन से मॉडल जिस टाइम आप ट्रेन कर रहे होते हो आपको एक एरर आ जाता है कि लाइक सम कंपैटिबिलिटी इशू या मल्टीप्लिकेशन का कोई इशू आ जाता है। तो वो किस केस में होता है, वो इस केस में होता है कि आपके जो भी टेंसर्स थे उनका साइज आपस में बराबर नहीं है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है आपको पता होगा कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का कोई ना कोई रूल होता है। ये नहीं है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। वो जो रूल होता है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस वन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस वन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उनकी। तो जब ये आपस में इक्वल नहीं होते तब आपके पास एरर आ जाता है। तो उसको डीबग करने के फिर ये तरीके होते हैं, यहाँ से आप डीबग कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देगा एंड आप समझ रहे होगे कि मेरे मॉडल में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके मॉडल में नहीं है, आपकी जो डेटा की रीशेपिंग है वहाँ पे प्रॉब्लम है। और इस तरह आप चेक कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली कि क्या क्या टाइप्स हैं एंड एवरीथिंग, टाइप ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डायमेंशन, शेप ऑफ टेंसर, एलिमेंट्स लॉन्ग जीरो एक्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑपरेशंस आप इसमें क्या परफॉर्म कर सकते हो टेंसर्स के साथ, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई, मिन, मैक्स एंड स्लाइसिंग के ऑपरेशन, ये नॉर्मल अरे के ऑपरेशन है, और वो ऐसे ही होते हैं जिस आप नॉर्मली करते हो। ऐड डिफरेंट तरीके से होता है जिस तरह ये हमने किया हुआ है। और जो ऑपरेशंस हैं these might be a bit you can say tricky for you, so इसको भी आप लोग पे स्किप कर दो। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इसके यूज होते हैं। सॉफ्ट मैक्स, रीलू, रीलू अगर याद हो ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन था एक, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आपको मैनुअली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स अब जितने भी हमारे पास यू कैन से ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, क्योंकि ये एक लूप में चीज चल रही होती है, तो आपकी ऐसी वैल्यूज जो कि चेंज हो रही होती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स वो डिफाइन नहीं कर सकते जो कि प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हो, इट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। नो, आपको टेंसरफ्लो के अपने वेरिएबल्स यूज करने होते हैं। और वो कैसे आप यूज कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। आप पहले सिंपली कांस्टेंट बनाते हो, ये चीज हमने पहले ऑलरेडी देख ली है कि टेंसर कैसे बनता है। या आपने टेंसर बना दिया, अब इस पूरे टेंसर को उठा के आप इस वेरिएबल में डाल देते हो और इसको असाइन कर देते हो माई वेरिएबल। और इसको फिर चेंज वगैरह करना है या किसी और में असाइन करना है ताकि आप इटरेशन में उसको बार बार एक्सेस कर सको, तो यहाँ से आप उसे एक्सेस कर लेते हो। और अपडेट करना है तो इसमें आप असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो चीज़ है, हमने असाइनमेंट का ऑपरेटर किसी को भी असाइन करने के लिए एज सच यूज नहीं किया। अब वेरिएबल भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसके थ्रू कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं।
डायरेक्टली हम असाइन नहीं कर रहे। इसका पर्पस ही यही है कि टेंसरफ्लो में जिस टाइम आप चीज़ें रन कर रहे होते हो वो अपने एक से एनवायरनमेंट में रन कर रहा होता है। अगर आप उसको मैन्युअली करोगे, पाइथन के वेरिएबल्स यूज़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने अगर वैल्यू अपडेट करनी है फिर आप असाइन का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और लेट्स सपोज आप अपना मॉडल रन कर रहे हो, आपके पास फीचर्स हैं, यू कैन से 1 GB का डेटा है और आपके पास वो रन नहीं हो रहा। फिर जब भी आप रन करते हो मेमोरी का कोई ना कोई इशू आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा मेमोरी को यूटिलाइज करती है। तो उसको आप कैसे वो करोगे, अवॉइड करोगे एंड एवरीथिंग। या आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो प्रोसेसिंग में, 4 वीक्स लग रहे हो एक मॉडल रन होने में। होता है वैसे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि इतना टाइम लगाते हैं। तो उसको कैसे अवॉइड करोगे? आप अपने जितने भी टेंसर्स थे उसको डालोगे वेरिएबल्स में और वो डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन कर दोगे। लेट्स सपोज आपने ये वेरिएबल्स अपने सीपीयू को असाइन कर दिए कि इस पे कोई भी ऑपरेशन आता है तो हमारा सीपीयू हैंडल करेगा, और अगर कोई भी ऑपरेशन आता है लाइक कोई और ऑपरेशन जो कि बहुत इंटेंसिव है तो वो आप जीपीयू के थ्रू हैंडल कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ है, दो चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं, आपका टाइम सेव होगा। जो ज़्यादा इंटेंसिव हैं वो पावरफुल चीज़ों को दे दें, जो कम इंटेंसिव हैं वो किसी और चीज़ पे करवा लें। हो सकता है आपके पास मल्टीपल सीपीयूज या मल्टीपल जीपीयूज हों, तो आप इस तरह परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने बताया कि आपके पास हो सकता है एक सीपीयू और मल्टीपल जीपीयूज हों, तो इस तरह आप हर जीपीयू से डिफरेंट काम ले सकते हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती, आपके पास 3 या 4 जीपीयूज हैं, तो फिर आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। और इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? यूजली तो ये होता है कि हम इतना ध्यान नहीं देते वेरिएबल्स डिलीट करने पे। हम बस अपना ब्राउज़र वगैरह या आईडी क्लोज करते हैं तो वेरिएबल हमारे पास ख़त्म हो जाता है मेमोरी से। बट टेंसरफ्लो के केस में इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस तरह करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लेट्स सपोज अभी आपने ये टेंसर क्रिएट किया है और लेट्स सपोज ये जीपीयू में आपने क्रिएट कर लिया है, तो आपने आईडी अपना क्लोज कर दिया है। उससे क्या हुआ है, उससे सिंपली ये हुआ है कि इसका ये लाइक जो भी नेम था और जो आपके जीपीयू में एक्चुअल टेंसर एग्जिस्ट कर रहा है उसका आपस में कनेक्शन खत्म हुआ है। टेंसर इटसेल्फ खत्म नहीं हुआ, वो वहीं पे पड़ा है। और आप लेट्स सपोज गेमिंग पे करने लग जाते हो या कुछ और करने लग जाते हो, आप देखते हो कि आपकी परफॉर्मेंस में बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। आपका पीसी भी स्लो चल रहा है और लैपटॉप है तो बैटरी भी कम चल रही है। तो उसका क्या इशू हो सकता है? उसका इशू यही है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और आपने उसको रिमूव नहीं किया। तो इट्स बेटर कि आप ये वाली स्टेटमेंट यूज करके उसको एक्सप्लिसिटली रिमूव करें। ये क्या क्या करेगा, एक तो कनेक्शन भी डिलीट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट को भी वहां से डिलीट कर देगा। इसको हम मेमोरी लीकेज भी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, मेमोरी के साथ एंड जीपीयू के साथ। अभी हमने टेंसर्स देख लिए हैं, वेरिएबल्स देख लिए हैं, और ऑलरेडी अभी मैंने बता दिए जो प्रॉब्लम होते हैं। तो आप इतना डेटा मल्टीपल लेयर्स में फेंकोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो अब एक्सक्यूज मी, मॉड्यूल्स पे आते हैं। या बिफोर गोइंग टू मॉड्यूल्स, सर ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं बेसिकली ये टेंसर फ्लो के अंदर ही होते हैं? यस। मतलब ये कि ये जो आप वेरिएबल्स के आगे मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट होगा 2.0 लाइक आपने लिखा नीचे स्लाइड में। दिस वन। जी जी। अच्छा, इसको कैन यू रिपीट योर मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि सर ये जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी डिफाइंड है और ये क्या आउटपुट देगा यहाँ पे, लाइक अगर हमने 2.0 इसके सामने लिख दिया तो इसका क्या आउटपुट होगा? बेसिकली इसका आउटपुट कुछ नहीं होगा। ये
अच्छा, यू मीन कि इसको अगर हम करें ये आउटपुट क्या दे रहा है जो बी को साइन हो रही है, यू मीन दिस? यस। ओके, तो बेसिकली ये आउटपुट तो जो देता है वो numpy की अरे देता है यूजुअली, लेकिन वो टेंसरफ्लो के अपने डेटा स्ट्रक्चर में होती है, लेकिन numpy से रिलेटेड ही होती है। तो आप अगर सिंपली कोई अरे लिखते हो उसमें डिफरेंस होता है, पाइथन की अरे में डिफरेंस होता है, numpy की अरे में डिफरेंस होता है, और टेंसरफ्लो की अरे में भी डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस फ्रंट एंड का नहीं होता कि आपको लाइक फ्रंट पे वैल्यूज डिफरेंट नजर आ रही हैं। ये बेसिकली डिफरेंस बैक एंड का होता है कि बैक एंड पे चीज़ कैसे रन हो रही है, लाइक मेमोरी इटसेल्फ में वो जो आपका वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो ये इसलिए होता है। Does that answer your question? Okay, thank you. By the way, if anyone else has any question, you guys can ask freely. Okay, Hamza has a question. Is tensor just the hidden layer you mentioned at the beginning, or is it compilation of input layer plus hidden layers? Okay, let me clear this up. Where is it? Okay. So, हमजा का क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास टेंसर्स हैं वो इनपुट लेयर और हिडन लेयर्स का कंपाइलेशन है, या वो लाइक कैसे वर्क कर रहा है? बेसिकली जो हमारे पास टेंसर्स हैं ना, वो ये डेटा है जो कि यहाँ से पास करेगा। टेंसर्स इटसेल्फ में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसेसिंग करते हैं। ये जो हमने फार्मूलाज देखे थे ना पीछे, ये फार्मूलाज थे, ये सिंपली फार्मूलाज हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। ये हम सारी देख रहे थे कंडीशंस, ये वाली, ये सिंपली फार्मूलाज हैं। तो जितने भी हमारे पास परसेप्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सिंपली फार्मूलाज पड़े होंगे, और जो हमारे पास टेंसर्स होंगे वो यहाँ से पास करेंगे। टेंसर्स स्प्लिट हो जाएंगे फीचर्स में, एक फीचर यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, और ये बारी बारी एक एक लेयर पे पास होते जाएंगे, और एंड पे एक फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि वापस कंपाइल हो जाएगा। तो बेसिकली वो डेटा है जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, हमजा। Yes, madam, got it. Okay, so let's go towards module. So अभी हमने वेरिएबल्स वगैरह को सारा कुछ डिफाइन किया एंड एवरीथिंग। तो मॉड्यूल्स करता क्या है बेसिकली? ये जितने भी आपने वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन किए हैं, वेरिएबल्स जो थे बेसिकली वो वेट्स के लिए थे। जो वेट्स हम डिफाइन करेंगे ना उसके लिए, तो उनको पैकेज कर देता है, एक साथ इकट्ठा कर देता है। अभी हमने सेपरेटली उन्हें डिफाइन किया ना। लेट्स सपोज आप 5 दिन से अपना मॉडल रन कर रहे हो, और उसमें जो भी आपके वेरिएबल्स थे उसकी कोई अपडेटेड वैल्यू आई है, तो उसको आप कैसे, यू कैन से, मेंटेन रखोगे? लेट्स से 5 डेज के बाद आपका पूरा मॉडल क्रैश कर गया या पीसी क्रैश कर गया, कुछ हो गया, तो आपका तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। आपको 5 डेज के बाद दोबारा सारा कुछ रन करना पड़ेगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप चेक पॉइंट्स लगाते हो, और जितना भी आपका प्रोग्रेस हो गया वो सेव होता रहे कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए होता है। इसमें ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर रिग्रेशन हमारे पास होती है। इसमें ये जो होते हैं ये पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, डब्ल्यू और बी, और ये जो होती हैं ये इनपुट्स होती हैं हमारे पास, और ये एंड पे हमारे पास रिजल्ट होता है। ये लीनियर रिग्रेशन का सिंपल सा ग्राफ होता है। अब लेयर आपने क्रिएट कैसे करनी है? लेट्स सपोज अब हमने डिस्कशन की थी परसेप्ट्रॉन्स की एंड एवरीथिंग। अब सबको हमने इकट्ठा करना है और एक लेयर बनानी है अपनी। कैसे करेंगे? एक हम क्लास डिफाइन करेंगे जो कि यहाँ से इनहेरिट कर रही होगी टीएफ मॉड्यूल से। बेसिकली इनहेरिटेंस जो में होती है वो यहाँ पे इस तरह होती है पाइथन में। इसमें हम फिर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे,
और उसमें जो भी इन फीचर्स हैं लाइक इनपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर्स, नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट फीचर्स, वो हम डिफाइन कर देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 इनपुट फीचर्स और 3 आउटपुट फीचर्स और 3 इनपुट फीचर्स हों। और बाय द वे जो सेल्फ है ये अगर आपने पाइथन में ऊप की हो तो ये उसमें आता है और ये कंस्ट्रक्टर है। अब हमने सुपर यूज किया है, जितने भी पेरेंट में उसके रिलेशन थे सारे इंपोर्ट कर दिए हैं। एंड बाय द वे यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि ये सारा काम हम मैनुअल क्यों कर रहे हैं, इसका कोई ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता? यस, एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मैनुअल भी करनी होती हैं। तो इट्स बेटर कि आपको दोनों चीज़ें आती हों, आपको मैनुअल काम भी करना आता हो और आपको एक बनी बनाई चीज़ यूज़ करनी भी आती हो। और डीप लर्निंग ऐसी चीज़ है कि जो कि अभी भी रिसर्च में है, बहुत ज़्यादा रिसर्च में है। तो इसलिए ये इतनी चीज़ें आपको यू कैन से पॉलिश नहीं मिल रही जिस तरह बाकी डोमेन्स में मिलती हैं। ओके, सो सारा कुछ हमने इनहेरिट कर दिया, यहाँ से डिफॉल्ट सेटिंग इसकी हो गई। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और ये देखो W जो था हमारे पास, वेट्स की हमने बात की थी, तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं और वेट्स में हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हो ना, ये इतना लंबा जो लिखा हुआ, ये बेसिकली हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये अगर आपके पास एक्चुअल डेटा सेट है, यहाँ पे एक्चुअल डेटा सेट आ जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली ये लिख दोगे। इससे क्या होगा कि टेंसरफ्लो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ये होती है। आपके पास डेटा इस तरह होता है, कोई भी स्क्यूड नहीं होता, बोथ साइड पे इक्वल और बैलेंस डेटा होता है। एनी हाउ, इस तरह का आप डेटा जनरेट करवा रहे हो और उससे आप नाम दे रहे हो W का, और साथ बी डिफाइन कर रहे हो। बी मीन्स बायस, W मीन्स वेट्स, और इसमें सिंपली जीरोस की मैट्रिक्स आप डिफाइन कर रहे हो। एंड देन कॉल की बात आ जाती है। कॉल ये कि जब भी इसको आप यू कैन से क्लास को कॉल करोगे तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए मैट्रिसेस की आपस में, और उसमें बायस प्लस हो जाना चाहिए। ये बेसिकली mx वाला काम हो रहा है, mx, और ये b है और ये प्लस है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो ये वही काम हो रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। और एंड पे हम इसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं रीलू का, लाइक इसका जो भी रिजल्ट आया ना उसको हमने रीलू में पास कर दिया है। एज आई सेड, वो जो फार्मूला लिखा हुआ था, कि फार्मूला तो मैंने लिखा है लेकिन आगे रिजल्ट नहीं है, तो उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ताकि जो भी कंडीशन हो हम यूज कर सकें। सर और bias will be added to every input. अ, हर इनपुट पे नहीं ऐड होगा वो, बेसिकली जितना भी आप लाइक वेट्स को आपने इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो उसका रिजल्टेंट आया है ना मैट्रिक्स, उसको उसमें आप बायस ऐड कर रहे हो। ये एक स्केलर वैल्यू है और ये मैट्रिक्स है पूरी। Okay. ये आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, ये आपके पास मैट्रिक्स है और आप इसमें 3 ऐड कर रहे हो। ये 3 हमारे पास बायस है और ये इसका रिजल्टेंट है mx का। और आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब भी कुछ प्लस किया जाए वो हर वैल्यू में प्लस कर देता है, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है। अच्छा, अभी हमने जो देखा था ये एक सिंपल सी लेयर थी, सिंपल सा परसेप्ट्रॉन था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मल्टी लेयर मॉडल बना रहे हैं। ये एक परसेप्ट्रॉन था, वो जो हमने गोल सी प्यारी सी नोट देखी थी, ये हमने बनाया है अभी। इसमें एक्टिवेशन फंक्शन भी ये लग गया और ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये परसेप्ट्रॉन का फंक्शन लग गया। अब हमारे पास एक नोड रेडी है। अब हमने लाइक मल्टीपल नोड्स बनानी है और प्रॉपर एक लेयर डिफाइन करनी है। अब हम कैसे करेंगे, एक और हम क्लास बनाएंगे सेम तरीके से, ये और सेम तरीके से हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। यू कैन थिंक कि ये चीज़ हमारी हमेशा आएगी।
और ये हम कस्टम मॉडलिंग कर रहे हैं एक तरह से। अब इसके अंदर हमने यू कैन से 2 लेयर्स डिफाइन कर दी हैं, डेंस 1 और डेंस 2। इसको आप कह सकते हो ये हमने इस तरह कर दिया। और इनपुट फीचर्स कह रहे हैं कि 3 होंगे, मींस ये कुछ ऐसे होगा। ये जो 3 लिखा हुआ है ना और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे होगा। और जो सेकंड वाला है उसका 2 लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसे होगा कि just a second, ये आउट फीचर्स 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सिर्फ 2 के साथ कनेक्टेड होगा। Sorry, ये तीसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इसके आउटपुट फीचर्स ही 2 हैं। अब हमने इसका सेम लाइक कॉल वाला फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अगर आप लोग देखो तो इसका यू कैन से सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। जो हमने प्रीवियसली क्लास बनाई है ना, वहाँ उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले हमने एक नोड बनाया है, उसको लेके हमने लेयर्स बनाई हैं। और अगर आपने वेरिएबल्स देखने हो तो आप सिंपली फॉर var इन माई मॉडल डॉट वेरिएबल्स करोगे तो ये सारे वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे। ये देखो वेट 0, पहली नोड के पास जो वेट्स आए हैं वो ये आए हैं। आप में से किसी का क्वेश्चन भी था कि वो क्या आउटपुट देगा, तो ये उसकी आउटपुट होगी। ये आप लोग देख रहे हो कि ये नॉर्मल अरे की तरह नहीं है, ये नंबाई की अरे की तरह है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। ये टीएफ वेरिएबल फॉर्मेट की है। ये हमारे पास बायस है, ये वैल्यू आ गई इसकी, एंड ये सेकंड लेयर की, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2, इन दोनों का रिजल्ट है। अब सेव करने के पास आपके पास 2 तरीके हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि आप 5 डेज से कॉन्टिन्यूसली अपना मॉडल रन कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई भी इशू आ जाता है तो व्हाट विल यू डू। तो पहला तरीका आपके पास ये है कि आप एक चेक पॉइंट्स लगा दो और हर चेक पॉइंट के बाद आप उसे सेव करते रहो। ये यूजली होता है कि जिस टाइम आपके पास फॉर लूप लगा होता है ना, आप उसके एंड पे लगा देते हो ताकि हर इपॉक या इटरेशन के बाद वो सेव होता रहे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम टीएफ मॉड्यूल वाली यू कैन से क्लास से इनहेरिटेंस कर रहे थे। ये सारा कुछ ये टीएफ मॉड्यूल ये ऑलमोस्ट हर हमारी क्लास में यूज हुआ है। अभी हमने टेंसर्स को देख लिया है, वेरिएबल्स को देख लिया है, और ये जो सारा कुछ किया है ना, ये बेसिकली करता है फॉरवर्ड पास नेटवर्क में। अब फॉरवर्ड पासिंग और बैकवर्ड पासिंग, अब ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। और बाय द वे ये इतना इन डेप्थ टॉपिक है कि इस पे अभी भी यू कैन से हर एक टॉपिक पे रिसर्च चल रही होती है। जितने भी मैंने टॉपिक्स की बात की है, वेरिएबल्स, टेंसर्स, परसेप्ट्रॉन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, हर एक चीज़ पे रिसर्च हो रही है। तो दे आर न्यू थिंग्स कमिंग इन एवरी डे। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, किसी और को भी कह सकते हो, किसी और के लिए कर सकते हो। तो ये सीन है। अच्छा, अभी हमने टेंसर्स की बात की थी कि टेंसर्स यहाँ से आगे मूव करते हैं। सपोज ये है, यहाँ से मूव कर रहे हैं। अब ये जो आगे की तरफ मूव करते हैं लेयर्स में, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पासिंग। लाइक डेटा आपका सारा अगली लेयर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन लेट्स ये हमने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास 2 एक्चुअल वैल्यू है लेकिन प्रिडिक्शन आई है 4। अब 4 को कैसे करेक्ट करना है, इसके वेट्स ऑब्वियसली एडजस्ट होंगे। वेट एडजस्ट कैसे होंगे, आप जितना भी लाइक एरर आया है ना, उसे वापस भेजोगे पिछले नोट्स की तरफ स्टार्ट में कि भाई पीछे जाओ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तुमने कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती की है। तो वो अपनी वेट्स को रिकैलकुलेट करता है, तो फिर दोबारा एक न्यू वैल्यू लेकर आता है। लाइक बैकवर्ड पासिंग होती है, फिर फॉरवर्ड पासिंग होती है। बैकवर्ड पासिंग को हम इस उसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है।
In any other session we'll discuss this, but overall इसका concept आप लोग देख लो। तो हो सकता है नेक्स्ट कैलकुलेशंस के बाद इसकी वैल्यू हो जाए 3, तो आपको ऑब्वियसली एरर कम हुए, तो दैट मीन्स इट्स गुड। तो इसके बाद फिर आप इटरेशन करोगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा अनलेस यू गेट द क्लोजेस्ट वैल्यू टू 2। तो वहाँ पे आपने अपना लॉस मिनिमाइज कर लिया। और भी इसमें बहुत कुछ है, और इसमें अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ऑल्दो कि ये यू कैन से इस सेशन का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और ऑलरेडी हमने काफ़ी हाई लेवल चीज़ें देख ली हैं और मैथमेटिक्स काफ़ी देख ली है, तो आई नो यू गाइस आर टायर्ड एज वेल। लेकिन मैं जस्ट इसका कोड आप लोगों को दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रोग्रामेटिकली चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। ये कोलैब पे मैंने ओपन किए। बाय द वे ये जितना भी कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं लास्ट स्लाइड में दे दूंगा आपको कि गिटहब पे कहाँ पे आपको मिलेगा। एनीहाउ यहाँ पे हमने इंपोर्ट्स कर दिए और ये मैं डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ। ये गूगल से पे डेटा सेट अवेलेबल है, तो यू गाइस कैन डाउनलोड दैट डेटा सेट फ्रॉम हियर। यहाँ पे हमने सिंपली इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद डेटा हमने रीड कर लिया थ्रू पांडास, और इस डेटा को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, इसमें ये हमारे पास कंटिन्यूस फीचर्स हैं और कुछ इसमें हमारे पास कैटेगोरिकल फीचर्स भी हैं। इसमें हमने अब देखते हैं प्रिडिक्शन क्या करनी है। सबसे पहले तो हमने जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं उन्हें सेपरेट कर लेना है दो बेसिस पे, कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस फीचर्स। क्योंकि कैटेगोरिकल डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज, और कंटिन्यूस डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होती हैं। अब हम उसको कैसे करेंगे? यहाँ से हमने डेटा में से सिर्फ ये कॉलम्स पिक कर लिए और उसको डिवाइड किया 100 से। यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि 100 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। 100 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ से आप लोग देख रहे होगे ये यहाँ पे 4.5 वैल्यू है और यहाँ पे 118 है। जस्ट इमेजिन कि अगर हम इसी डेटा को एंड तक लेकर जाएं और इस पे प्रिडिक्शंस करें तो हमारा डेटा बहुत ही बायस्ड होगा। क्यों बायस्ड होगा? क्योंकि इन दोनों के स्केल डिफरेंट है। अब जिस टाइम वो लॉस कैलकुलेट करेगा, लॉस कैलकुलेशन में आपके पास ये कितना डिफरेंस आएगा, इन दोनों को आप माइनस कर लो, 100 एंड समथिंग का आएगा। जबकि इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि हो सकता है स्कोर स्टार्ट ही 100 से होते हैं, जबकि एसओपी हो सकता है 2 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 10 तक जाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये लॉजिकल इशू है। आपका मॉडल रन हो जाएगा, मॉडल में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वो प्रिडिक्शंस ठीक नहीं देगा। तो हमने क्या किया है, इसको स्टैंडर्डाइज किया है। अभी तो 100 से डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसके अपने बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जो कि इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। एनीहाउ इसको हमने दो में स्प्लिट कर दिए, कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल, और इसको हमने एक्स और वाई में स्प्लिट कर दिया। जो चांसेस ऑफ एडमिट है ना, ये इसको हमने अपना वाई ले लिया, जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हमने लिया था अगर याद हो, और इसके अंदर हम अरे बना रहे हैं ये इन दो चीज़ों की, कंटिन्यूस की और कैटेगोरिकल की। इसको मैं रन करके दिखा भी देता हूँ कि इसकी क्या आउटपुट होगी। ये हमारे पास आ रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो डेटा अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि वैल्यूज ही ऐसी हैं। तो यहाँ से आप लोग यूजली देख सकते हो कि कंटिन्यूस फीचर आपने लिए हैं, कैटेगोरिकल फीचर लिए हैं, और दोनों को आपने ऐड कर दिए, एक ही मैट्रिक्स बना दिए। उसके बाद y के साथ आपने सिंपली उसकी वैल्यूज निकालनी है, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई और आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया है। अगर आपने ML पे कभी भी काम किया हो, आपको पता होगा कि जितना भी ट्रेनिंग डेटा है हम उससे यूजली स्प्लिट कर देते हैं इनटू ट्रेनिंग पार्ट एंड टेस्टिंग पार्ट, ताकि हम उसकी एक्यूरेसी निकाल सकें। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, 80% टेस्ट साइज एंड 20%
नो 80% ट्रेन साइज एंड 20% टेस्ट साइज हम ले रहे हैं, यहाँ से हमने डिफाइन किया है। और हमने यहाँ से टेंसेस बनाए हैं पहले, ये देख सकते हो आप लोग, वही चीज़ जो हमने स्लाइड्स में देखी थी एक्स और वाई के। और उसके बाद हमने टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई के स्प्लिट कर दिए हैं ताकि हम इसमें टेस्टिंग कर सकें बाद में। और मीन स्क्वेयर एरर, अच्छा इसके बारे में डिस्कशन मैंने नहीं की। मीन स्क्वेयर एरर ये चीज़ें क्या हैं? लेट्स सपोज आपके पास प्रिडिक्शन आई है 4 की, जो हमने लाइक बार बार डिस्कस की है एंड एवरीथिंग। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो 4 की प्रिडिक्शन थी दिस वाज नॉट राइट, ये 4 की प्रिडिक्शन ख़राब थी? वो आपको पता ऐसे लगेगा कि आपने कोई ना कोई अपना डिफाइन किया होगा फंक्शन, उसको कहते हैं हम यूजली लॉस फंक्शन या समथिंग लाइक दैट। हर बंदे की नोटेशन अलग है। एनी उसका मकसद सिंपली ये होगा कि वो ये कैलकुलेट करेगा कि आपका प्रिडिक्टेड आंसर ओरिजिनल आंसर से कितना दूर या नज़दीक है। तो वो इसलिए यूज होता है। इसके अब डिफरेंट मेथड हैं। एक तरीका है मीन स्क्वायर एरर, इसका अपना फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को भी हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि इट्स डिफरेंट टॉपिक इटसेल्फ। एंड तो वो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ये ओरिजिनल इनपुट ले रहा है, ओरिजिनल आउटपुट ले रहा है और प्रिडिक्टेड आउटपुट ले रहा है। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया और नीचे उसका डेरिवेटिव डिफाइन कर दिया। और नीचे हमने सिंपली जो कैलकुलेशन हो रही है वो डिफाइन कर दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो tf डॉट टेंसर डॉट, ये बेसिकली mx वाला काम कर रहा है। ये जस्ट mx प्लस बी, और साथ बायस ऐड कर रहा है। बायस को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। ये m हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। mx प्लस बी ये सिंपली वही फॉर्मूला है, बस सिंटेक्स यहाँ पे ये है। अब नीचे हम थोड़े हाइपर पैरामीटर्स एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इपॉक्स मींस के नंबर ऑफ इटरेशंस, कितना इटरेट होगा वो। और नंबर ऑफ सैंपल्स, लाइक कितने हमने सैंपल्स लेने हैं। तो इसमें हमने सिंपली जो इसकी, बल्कि मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसकी। फोर 400 सैंपल्स हम लेंगे टोटल, लाइक टोटल नंबर ऑफ यू कैन से वैल्यूज जितनी है ना उसकी हम वो ले रहे हैं। और बैच साइज मीन्स के ये जो 400 का डेटा है ये 10 की बैचेस में वो ट्रेन होगा। और लर्निंग रेट ये है कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो कितने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। लेट्स या लाइक कितने स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसका डेटा सेट बना रहे हो जो कि एक्स एंड वाई वैल्यूज थी वो लेके। और ये दो चीज़ें हैं, ये यू कैन से ऑलमोस्ट हर उसमें आएंगी। बाय द वे आई एम गोइंग थ्रू दिस मच फास्टर नाउ क्योंकि we are already over the time of the session and I know you आपने इतना, you can say you've been with me from the last hour and it was a lot to digest, so I am not going to take any more of your time, but some quickly से go through करेंगे and then we'll wind up this session. Okay, इसके आउटपुट्स में आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे होंगे। यहाँ पे हमने फीचर्स डिफाइन कर दिए, वेट्स डिफाइन कर दिए, बायस डिफाइन कर दिया। समटाइम्स बायस 0 भी होता है, आप कस्टम कैलकुलेट करते हो जैसे आपने करना होता है। ओके, यहाँ लूप्स में हम आ गए। यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फिर अपना लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर लॉस का डेरिवेटिव ले रहे हैं। उसके बाद जो बैक प्रोपगेशन है यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं की। और उसके बाद हम वेट्स को दोबारा एडजस्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया था कि 4 हमारे पास वैल्यू आई है तो वापस लेयर्स को भेजेगा कि मेरे पास इतना एरर है, तो वेट्स को वापस एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे वो वेट्स एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये काम चलता रहेगा जब तक हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं होती, जो हमारा बैच या नंबर ऑफ इपॉक्स हमने डिफाइन किए थे वो नहीं होते। और एट द एंड हमारे पास
ये लॉसेस आ जाएंगे, ये हमने प्रिंट कर किए हुए हैं। इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी जस्ट सेकंड, क्या प्रॉब्लम, अच्छा ये मैंने just a second, let me run this. ओके यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो लॉस जो है, पहले हमारे पास था 0.45। दैट मीन्स के जितना ज़्यादा लॉस हो उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है। वी नीड एज लिटिल लॉस एज पॉसिबल। तो हमारे पास 45 था, उसने बैक प्रोपगेशन की है, उसने बताया है कि ये लॉस ज़्यादा है, इसमें करेक्शंस करो। उसने करेक्शंस किए हैं, फिर 30 हो गया, फिर 23, फिर 20, एंड पे हमारे पास इतना बचा है। अगर मैं इसको 10,000 ई बॉक्स से या जितना करूं तो वो उसके अकॉर्डिंगली होता जाएगा। लेकिन इसमें वन थिंग टू नोटिस इज के कभी कभी आपके पास टाइम आता है ऐसा कि ईपॉक्स लॉस बढ़ने लग जाता है वापस। लाइक अभी ये 18 आ रहे हैं ना, हो सकता है कि वापस ये 40 को हिट कर जाए। बल्कि इफ यू गाइस कैन सी दिस, यहाँ भी आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ तक 1834 पे गए, इसके बाद 1839 पे जाना शुरू कर दिया इसने, लाइक इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। यूजली कंडीशन हम पुट करते हैं कि अगर प्रीवियस से ग्रेटर है तो स्टॉप कर दो। फिर इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, स्टार्ट में हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और इतना कम हो गया। और जो मीन एब्सोल्यूट एरर था ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ये हमारे पास ये निकला है 0.42। सो दैट वाज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ये मैं नोटबुक आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड इफ वी गेट द टाइम इन फ्यूचर इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आई ट्राइड कि हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी एंड थोड़ा बहुत कोडिंग वाला पार्ट भी कवर कर लें विद इन दिस सेशन। So, if you guys want to contact me, this is my LinkedIn, this is my GitHub. By the way, आप लोगों को ये you can say slides और notebooks मेरे GitHub पे मिल जाएंगे। Deep Learning with TensorFlow सेशन के नाम से ही आपको रिपोजिटरी मिल जाएगी, उसके अंदर होगा। एंड या थैंक यू। बाकी इसके अंदर कुछ if you guys want to learn more about TensorFlow, यहाँ पे आपके पास available होगा। And one last thing, we have a Kahoot quiz for you guys, so do like participate in that. Amal, are you going to take over or should I share? I think मैं ही शेयर कर दूँ। ओके, ये Kahoot का क्विज है। अगर किसी ने ना खेला हो पहले, आई लेट यू नो कि कैसे ये होता है। Just a second. Let it load. Amal, by the way, if you want to share this, you can share this as well. Let me. हमजा आपका हैंड रेज है। ठीक है, जी समा भाई, मेरा ना क्वेश्चन था। आपकी आवाज कट रही है। Do you have a question? Am I audible? Yes.
Sorry for the First of long all, message. thank you very much to Sama bhai for having this wonderful session. Then my question is related to the weight optimization. So Sama bhai, what would be the steps के minimum set of data से minimum tensor से हमारा most effective weight optimization हो जाए? Yes. Okay. क्या कहना चाह रहे हो? हमारा मिनिमम टेंसर से या मिनिमम इनपुट डाटा से हमारा मोस्ट इफेक्टिव वेट ऑप्टिमाइजेशन हो जाए. Usman, I guess there is a problem at your end and connection problem, na? Can you share the Kahoot with me? I can share my screen then. Yes. Can you guys hear me now? Yes. Okay, great. My internet disconnected. So, can you repeat the question? बल्कि आपने chat में भेजा है. How can we get most effective weight optimization with minimum set of input? Okay, इसकी different techniques हैं हमारे पास. इसमें just a second. इसमें एक second. Okay. इसमें टेक्निक्स हमारे पास डिफरेंट ये हैं कि you need to run firstly you need to pre-process your data in a much better format. Secondly, आपने ठीक एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करने हैं और आपने अच्छे you can say perceptron functions यूज करने हैं और उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि आप कहीं पे ओवरफिटिंग या you can say कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे क्योंकि लॉस जो आप चूज करते हो ना हो सकता है कि आप लॉस जो ले रहे हो उसकी बेस पे आप बैक प्रोपगेशन कर रहे हो तो वो लॉस आपने ठीक ना चूज किया हो तो दैट कैन बी एन इशू. तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना होता है. फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस, परसेप्ट्रॉन फंक्शंस और बैक प्रोपगेशन ठीक हो रही है एंड डेटा की क्लेंजिंग ठीक हो रही है. ओके गाइस, यू गाइस कैन ज्वाइन. आप kahoot.it पे जाओ and just type in this pin. Uh, okay, so if is anyone else joining, simply kahoot.it पे जाओ and I'll type in the pin. I think कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है. Okay, let me send the link in the chat. वैसे अमल ने भेजा है but still. उस्मान रिकॉर्डिंग भी ना पॉज कर दो काफी. Okay,